اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ہے 9923223361 اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے کانگریس کے دبنگ لیڈر، قدآور نیتا اور پردیش ادھیکش ہرش وردھن جی سبکار نے بڑا زبردست حملہ کیا ہے بی جے پی پر۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نے مہاراشٹر کو تماشا بنا دیا، کھیل بنا دیا۔ ایک طرف وہ ایوان کے اندر، اسمبلی کے اندر رمی کھیل رہے ہیں تو باہر WWF کی کشتی کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو وزیر مملکت کی ماں کے نام پر چل رہا ہے ڈانس بار، ان کی ماں کے نام پر چل رہا ہے، وزیر مملکت کی ماں کے نام پر چل رہا ہے ڈانس بار۔ آخر ریاست میں، اسٹیٹ میں لا اینڈ آرڈر، نظم و نسق کا نظام پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ مہاراشٹر کبھی یشونت راؤ چوہان، ولاس راؤ دیشمکھ اور پرتھوی راج چوہان جیسے قدآور سیاسی لیڈروں کی قیادت میں اپنی خوشحال سیاسی ثقافت اور پولیٹیکل کلچر کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 10 برسوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس عظیم مہان ریاست کو، اس عظیم اسٹیٹ کو ایک مضحکہ خیز تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایوان اسمبلی کے اندر تاش رمی کھیلا جا رہا ہے تو باہر WWE کے طرز پر سیاسی کشتی ہو رہی ہے۔ اس زوال پذیر صورتحال کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ مکھیہ منتری فڈنویس ہے، جن کی قیادت میں مہاراشٹر مسلسل گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سخت الزامات مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ہرش وردھن جی سبکال نے عائد کیے ہیں۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی لوکل ٹرین دھماکہ کیس، آپ جانتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا ارشد مدنی کو، جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران، خدام اور ان کی وکیلوں کی ٹیم کو کہ 19 سال تک مضبوطی کے ساتھ جمعیت علماء نے اس کیس کو لڑا اور تقریباً 12 مسلم جوان باعزت بری ہوئے ہیں، جن میں 7 عمر قید اور 5 پھانسی کی سزا سے بری ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے اور وہ ان کے چھوٹ جانے پر، باعزت بری ہونے پر ان کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ بے قصور ہے تو پھر مجرموں کو سامنے لاؤ، مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے کہ یہ چھوٹے کیسے ہیں۔ جی ہاں، سپریم کورٹ میں ان کے خلاف جانا چاہیے، لیکن الحمدللہ
बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई लोकल ट्रेन धमाका केस की जल्द सुनवाई से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और महाराष्ट्र के हिंदू और मुस्लिम उन तमाम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं, बल्कि यूं कहूं तो गलत कहूंगा कि थूक रहे हैं, जो लोग इन 12 बेकसूर मुस्लिम जवानों के बरी होने पर जिनके पेट में दर्द हो रहा है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पाई है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बाकायदा अपोजिशन पार्टियां जोरदार हंगामा कर रही है कि इस पर बहस करो, इस पर जवाब दो। लेकिन मोदी जी तो पत्रकारों के सामने कभी आते ही नहीं। 56 इंच का सीना पत्रकारों के सामने, हमारे जैसे लोगों के सामने आने से डरता है। लेकिन अब खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 28 जुलाई को राजनाथ सिंह यानी वजीर दिफा जवाब देंगे। हम पूछ रहे भैया क्या जवाब देंगे? वो तो हो जाएगा, लेकिन पुलवामा के आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए। तुम इलेक्शन जीत गए 2019 का, पुलवामा के शहीदों के नाम पर भीख मांगकर, पहलगाम के आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चला। चलो खैर, ऑपरेशन सिंदूर और इससे पहले भी कौन सा ऑपरेशन किया गया था, जी हाँ, तो सब लोगों ने देखा, लेकिन आतंकवादियों को अब तक पकड़ना तो दूर की बात, उनके नाम भी अब तक सामने नहीं आए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी दबंग नेता अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में मोदी से तल्ख, कड़वा और सख्त सवाल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने कहा कि क्या मोदी जी आप ट्रंप की गुलामी करना चाहते हैं? राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर के ताजा बयान का जिक्र करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 25 मरतबा ये कह चुके हैं कि उन्होंने ही जंगबंदी करवाई है इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन ट्रंप कौन होते हैं जंगबंदी करवाने वाले? ये उनका काम नहीं। लेकिन वजीर आजम मोदी ने एक बार भी मुंह नहीं खोला, जवाब नहीं दिया। यह हकीकत है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। इसलिए सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि क्या मोदी जी आप ट्रंप की गुलामी करना चाहते हैं? नाज़रीन, अहमदाबाद में आपको याद होगा प्लेन क्रैश हुआ और बड़ी दर्दनाक सूरत हाल हमारी निगाहों ने देखा। लेकिन अब उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में एक नया विवाद, एक नया तनाज़ा सामने आ गया। बर्तानिया के जो लोग, ब्रिटेन के जो लोग उस प्लेन में क्रैश में मरे हैं, उनकी 12 लाशें बरतानवी कुंबे को यानी बरतानवी फैमिलीज को 12 गलत लाशें दे दी गई। ये जांच में इंकशाफ हुआ है, यानी क्या चल रहा है मोदी जी के राज में, आप खुद समझ सकते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया मुसाफिर तैयारी के दर्दनाक हादसे का गम अभी मध्यम भी नहीं हुआ कि इस दरमियान कई बरतानवी मुतासरा कुंभों की ऐसी तकलीफ मंजर आम पर आई है जिसके बारे में जानना किसी के लिए भी अजियतनाक है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कम से कम 12 अफराद की ऐसी लाशें मुतासरा बरतानवी कुंभों को सौंप दी गई जो उनके रिश्तेदार नहीं थे। यह इंकशाफ लंदन में मुतासरा कुंभों का काम देख रहे वकीलों ने किया है। अगला बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, जामे मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई जिसको लेकर अब हंगामा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जनाब मेंबर पार्लियामेंट मुहिब्बुल्लाह नदवी ने भारतीय जनता पार्टी को इशू थमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदर अखिलेश यादव की पार्लियामेंट हाउस के साथ वाली मस्जिद में एसपी लीडरों के साथ बैठे हुए तस्वीर को इशू बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अक़लियती मोर्चे ने तस्वीर जारी करते हुए इल्जाम लगाया कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को एसपी ऑफिस यानी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में तब्दील कर दिया है। इसके खिलाफ उन्होंने एहतिजाज करने का ऐलान भी किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एसपी के कई मेंबर पार्लियामेंट उनके साथ मौजूद हैं। रामपुर के रुकने लोकसभा मुहिब्बुल्लाह नदवी जो इस मस्जिद के इमाम हैं वो भी तस्वीर में मौजूद है। अगर बड़ी खबर आ रही है, यहाँ
नरेंद्र मोदी आपके मेरे किसी के अकाउंट में 15 लाख तो नहीं डाल पाए हैं, जी हाँ, लेकिन खबर आ रही है कि उन्होंने अपने अरबपति, खरबपति, करोड़पति नहीं खरबपति दोस्तों के 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। खड़गे जी ने, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी राज में खरबपति दोस्तों के 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ हो गए। बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर में एक बहादुर बेटी जिसका नाम है सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी, जिसने पाकिस्तान के 12 बजा दिए थे और बड़ी बहादुरी के साथ फाइटर जेट प्लेन उड़ाकर अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया था। लेकिन आपको याद होगा कि बीजेपी के कुछ घटिया और नीच किस्म के बयानात आए थे कुछ मंत्रियों के कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ, जिसको लेकर मुल्क ने बीजेपी पर और उन मंत्रियों पर थूका भी था। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हो गई है कि कर्नल सूफिया के खिलाफ विवादित मुतनाज़ बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के घटिया नेता जय शाह को मंत्री पद से हटाया जाए। ऐसा डिमांड, ऐसा मुतालबा किया जा रहा है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। दो बड़ी खबरें इस वक्त औरंगाबाद शहर से हमारे रिपोर्टर उमैर बिन मुफ्ती नईम ने दी है। जी हाँ, पहली खबर आ रही औरंगाबाद से कि मौलाना शमशुद्दीन काशफी कासमी, जी हाँ, हमारे जूनियर रहे हैं मौलाना शमशुद्दीन कासमी, औरंगाबाद जिले के अमीर जमात तबलीग मुंतखब कर लिए गए हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी ने मरकज निजामुद्दीन दिल्ली से यह फैसला सुनाया है। क्या है फैसला? कि मौलाना शमशुद्दीन कासमी औरंगाबाद जिले के अमीर जमात तबलीग मुंतखब कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता पीर को आलमी जमात तबलीग के मरकज निजामुद्दीन दिल्ली में कुल हिंद अमीर जमात तबलीग हजरत मौलाना मोहम्मद साद कांदलवी ने उन्हें औरंगाबाद जिले का तबलीगी जमात का अमीर मुंतखब फरमाया है। इस फैसले से जिला भर के जमात तबलीग के साथियों में मसरत की खुशियों की लहर दौड़ गई है। और दूसरी खबर औरंगाबाद की ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सौती आलूदगी के बारे में हिदायत पर अमल करते हुए औरंगाबाद की मसाजिद से लाउड स्पीकर उतरे हैं और यह कहा गया है कि अगर कवायद की दूसरी बार खिलाफ वर्जी की गई तो केस बनेगा। हर पुलिस स्टेशन हुदूद में ऐब में मसाजिद और सुदूर की मीटिंग हुई। अब बताया जा रहा है कि डिसिबल तय कर दिया गया है, उसके अलावा अगर कोई इससे ज्यादा आवाज करता है तो फिर बाकायदा केस भी दर्ज किया जाएगा। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने, जी हाँ, गुलशतकल जलगांव के इकरा थीम कॉलेज में के मोतीवाला हॉल में एक जबरदस्त प्रोग्राम पढ़े लिखे बच्चों के लिए, डिग्री याफ्ता स्टूडेंट्स के लिए और जो बच्चे अब मैदान अमल में आएंगे उनके लिए कैरियर गाइडेंस का इनेकाद अमल में आया था। जी हाँ, इस कैरियर गाइडेंस कॉन्फ्रेंस को इकरा यतीम कॉलेज और ओशन फ्लैग्स इंटरनेशनल, खादिम उम्मत व QUSKS के सहयोग से मुनक्किद किया गया था। कार्यक्रम का प्रस्ताविक डॉक्टर वकार शेख साहब ने पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल करीम सालार साहब, मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब नदवी, खादिम उम्मत के अध्यक्ष आबिद खान, डॉक्टर इम्तियाज रफीक, ओशन फ्लैग्स के CEO इस्माइल अहमद, डॉक्टर हारून बशीर ने मार्गदर्शन किया। इस प्रोग्राम का शानदार सूत्र संचालन मुस्तकीम सर ने किया, जबकि आभार रस्म शुक्रिया तनवीर खान सर ने पेश किया। मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में बड़े प्यारे अंदाज में बच्चों को कैरियर गाइडेंस के मौके पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से अपनी शख्सियत को निखारा जाए, संवारा जाए और किस तरीके से हलाल रोजी को बेहतर अंदाज में कमाया जाए, इन तमाम चीज़ों को मुकर्रिरीन ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। गुज़िश्ता कल का ये कार्यक्रम कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम बे इंतहा कामयाब
रहा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।